اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج محبت کا ایک ظالم ترین سفلی طلسم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ محبوب کے چھکے چھڑا دینے کے لیے بہت کافی عمل ہے۔ آپ نے چراغ کے لیے فلیتا بنانا ہے اور اس چراغ میں آپ نے اس تعویذ کو جلانا ہے۔ یہ دو تعویذ آپ نے بنانے ہیں، ایک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور دوسرے کو چراغ میں بنا کے چراغ میں تیل ڈال کے اس کو جلا دینا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا مجرب عمل ہے۔ ایک ہی دن یہ دونوں تعویذ بنیں گے، یہ دونوں فلیتے بنیں گے۔ ایک آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے فولڈ کر کے، اور دوسرا جو ہے اس کو اپنے چراغ میں جلا دینا ہے۔ تو چلتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں، دو لکیریں، دو خط کھینچے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ لکھنا ہے، نیچے بھی کچھ لکھنا ہے، وہ آپ کے سامنے ہی لکھا جائے گا، آپ دیکھتے رہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہم لکھیں گے 6، اس کے بعد یہاں میم لکھا جائے گا۔ اب آپ نے یہ بھی ترتیب دیکھنی ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جو لکیر کو ٹچ کرتے ہیں اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو لکیر سے اوپر ہیں۔ اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد میم اور ہے لکھی جائے گی۔ دیکھیں یہ بھی لکیر کے ساتھ ٹچ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک باکس بنائیں گے اس طرح سے، اور یہ ایسے لکیر کے نیچے آئے گا اس طرح سے، اور اس کے اندر ہم ایک خط اور ڈالیں گے اس طرح سے، اور یہاں اس کے اوپر ہم لکھیں گے 1 1 9 1 اس طرح سے۔ اس کے بعد یہاں جیسے موبائل فون میں ہیش کا نشان ہوتا ہے، وہ ہیش کا نشان آپ نے یہاں بنانا ہے۔ اس کے بعد 1 1 8، اس کے بعد یہ علامت اس طرح سے بنے گی، اس طرح سے، یہ بھی لکیر کو کاٹتی ہوئی نیچے جائے گی۔ اس کے بعد میم ہے، اور یہ بھی لکیر کو کاٹتی ہوئی نیچے جائے گی ایسے۔ اس کے بعد توئے 1 1، اس کے بعد یہ علامت اس طرح سے آپ بنائیں گے، اور اس کے بعد اس طرح سے ایک علامت آپ بنائیں گے، یہ لکیر کو نہیں کاٹے گی، اور دوسرا بھی آپ اسی طرح بنائیں گے، یہ بھی لکیر کو نہیں کاٹے گی۔ اب یہ اوپر کا جو کام تھا ہمارا یہ ہو چکا۔ اب ہم نیچے دوسری جو لکیر ہے اس پہ آ جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہاں سے ہم نے صاد بنانا ہے، صاد کی علامت دینی ہے۔ اس کے بعد اسی صاد کے اوپر ہم 6 لکھیں گے، پھر واو لکھیں گے جو کہ لکیر کو کاٹتا ہوا نیچے جائے گا، پھر اس کے بعد پھر واو اور پھر واو، یہ 3 واو آئیں گے جو لکیر کو کاٹیں گے۔ اس کے بعد 1 1 1، یہ لکیر کو نہیں کاٹیں گے۔ اس کے بعد واو واو، یہ لکیر کو کاٹیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک کون سی شکل بنانی ہے اس طرح سے، لیکن لکیر سے دور رہے گی، کاٹے گی نہیں لکیر۔ اس کے بعد واو، پھر واو، اس کے بعد توئے، الف، پھر ہے جو لکھیں گے یہ لکیر کو کاٹتی ہوئی نیچے جائے گی اس طرح سے۔ 1 8 1، اس کے بعد یہ نکھا لکھا ہے، نکھا، لیکن لکیر کو نہیں کاٹے گا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کاف میم الف ما، اس طرح سے، اور یہ سین اور لام الف لا، اس طرح سے۔ اس کے بعد آگے آخری جو لفظ ہے وہ ہے، اس طرح کی علامت بعد بنائیں گے آپ، اس کے ساتھ آگے لام لکھیں گے، لام کے ساتھ ہم تو لکھ دیں گے، یہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے یہ بن جائے گا اس طرح سے۔ اس کے بعد جو نیچے لکھنی ہے چیزیں وہ یہ ہیں، توکلو یا خدام، حاضہی، حاضہی طلسم، محبت،
फलां बिन फलां। अब इस फलां बिन फलां पे आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे अला मोहब्बत फलां बिन फलां। अब इस फलां बिन फलां पे आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखा। तरीका तो मैं खैर हर वीडियो में बताता हूँ, फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको। इस जो पहला फलां बिन फलां है, तिलिस्म मोहब्बत फलां बिन फलां, इस फलां पे आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे, अपने मतलूब का नाम लिखेंगे और आगे अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे, अगर खातून है तो बिनते लिखेंगे और अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम आ जाएगा। इसी तरह अला मोहब्बत आगे फिर फलां बिन फलां है, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। पहले फलां पे आप अपना नाम लिखेंगे, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखेंगे और अगले फलां पे वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो बिन की बजाय बिनते लिखेंगे। इस तरह से आपका ये तावीज़ बनेगा। और आगे जो कुछ लिखना है वो भी मैं आपके सामने ही लिखूँगा। अल वहाब, ये लफ्ज़ 2 दफ़ा लिखना है, अल वहाब। उसके बाद अल अज्जल, अल अज्जल ये भी 2 दफ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद है अल सा, अल सा ये भी 2 दफ़ा लिखा जाएगा। इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है, आखिरी जो चीज़ लिखने वाली है वो है बारिक फीकुम व अलैकुम। अब देखें ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अब ये तावीज़ आपका बिल्कुल मुकम्मल है, आपके सामने मौजूद है। यहाँ से अगर आप इसको लिखने के लिए प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसका प्रिंट आउट यूज़ करना चाहें तो भी मैं इजाज़त दे देता हूँ, प्रिंट आउट भी यूज़ कर लें। लेकिन फ़लाँ बिन फ़लाँ पे फिर आपको तरीका करना पड़ेगा कि जिस वजह से फ़लाँ बिन फ़लाँ यहाँ लिखा हुआ ना आए। उसके बाद आप इसको बना सकते हैं मुकम्मल, या अगर थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे करें तो जहाँ मैंने फ़लाँ बिन फ़लाँ अभी नहीं लिखा उस जगह से आप प्रिंट आउट ले लें, अगले अल्फाज पर आप अपने हाथ से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। सारा भी अगर बनाना चाहें मुकम्मल आप तो आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है ये, आप आसानी से इसको बना सकते हो। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से वर्क करने वाला ये नक्श है, ये तावीज़ है। अब ये आपके पास बनकर तैयार हो चुका है। आपने 2 बनाने हैं, इसके ऊपर इत्र लगाना है, दोनों पर ही लगाना है। मैं चूँकि एक ही बनाया है मैंने तो मैं एक ही पे लगाऊंगा। 2, 3, 4 कतरे इत्र के आपने लगा लेने ताकि इसके मौकलात जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए। ये बनाने के बाद आप कागज़ को अलग करेंगे और ये 2 आपने बना लेने, जैसे मैंने बताया आपको, अपने नाम वगैरह अपने हिसाब से अपने तरीके से लिख लेने हैं। और एक थोड़ी सी बात यहाँ और भी बता दूं कि अगर नाम में कोई नाम ऐसा मुतबर्रक है तो उस नाम को फिर ना लिखा जाए, उसके आदाद निकाल लिए जाए, आदाद निकाल के लिखे जाए। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा इस सिलसिले में, आदाद निकालने का तरीका भी आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं कि आदाद कैलकुलेटर के नाम से आपके एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप मिल जाएगी आदाद कैलकुलेटर के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाए। फिर अब इसका आपने फलीता बनाना है, इसको लपेट लेना है ऐसे। अब ज़रा मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा, थोड़ा हो सकता है मुझे अच्छी तरह से ना लपेटा जाए, लेकिन आपने इसको बड़ी तसल्ली के साथ लपेट लेना है इस तरह से। इसको तावीज़ तो हमने इसका नहीं बनाना, इसको हमने फलीता बनाना है। अब ये आपके पास बन गया। अब कोशिश कीजिएगा छोटे कागज़ पे बनाइएगा, क्योंकि मैंने खुले कागज़ पे इसलिए बनाया है कि ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ सके। अब इस पर थोड़ी सी हल्की हल्की रुई लपेट के और चिराग लेना है अपने दिया बट्टी का, जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, वो लेकर उसमें आपने तेल डालना है तिलों का, जिसको हम रोगन कुंजत भी कहते हैं। हमारी जो हिकमत की ज़ुबान है या हमारी जो अमलियात की ज़ुबान है उसमें रोगन कुंजत उसको कहा जाता है। पंसारी से आपको मिल जाएगा या किसी भी तेल वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। वो लेकर आपने चिराग में डालना है और इस जो फलीता आपके पास बन चुका है इसको उस चिराग के अंदर आपने फिट कर देना है।
फिट करके आपने जला देना। और ये रात को आपने जलाना है अकेले कमरे में जहाँ आप हो और ये चिराग हो और कुछ ना हो। आपके लिए मैं पढ़ाई का कोई काम इसमें नहीं दे रहा हूँ। आपने ये चिराग बना के जला देना है और चिराग के सामने बैठ जाना है। और चिराग में से जो लौ निकलेगी, जो बत्ती निकलेगी, लाइट निकलेगी चिराग के अंदर से, जो उस लाइट पे आपने नज़रें जमा के बैठना है और अपने महबूब को उस लाइट में तलाश करना है। इंशाअल्लाह अगर 5-10 मिनट आप नज़रें जमा के बैठोगे तो आपको आपके महबूब का चेहरा इसी लौ में, इस चिराग की लौ में नज़र आएगा। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ नज़र आएगा। और दूसरा जो तावीज़ आपके पास होगा इसी के साथ का, उसको थोड़ा सा आपने फोल्ड करके प्लास्टिक कवर कर लें या वैसे शापर में डालकर आप अपने पर्स में रख लें या अपनी जेब में रख लें, लेकिन इस तरीके से रखना कि वो ख़राब ना हो। काम ये एक ही दिन का है, एक ही दिन आपने करना है, बार बार नहीं करना, एक ही दिन का ये काम है। वो दूसरा तावीज़ आपकी जेब में या आपके पास मौजूद रहेगा। ये जो है इसको आप चिराग को जला देंगे। जब ये रात को जल जाए चिराग, फिर सुबह आपने चिराग भी, इसकी गिरी हुई राख भी सारी इकट्ठी करनी है और वो जो चिराग समेत आपने उसको ज़मीन में दफन कर देना। जो तेल बच जाएगा वो भी, जो चिराग जिसमें जो लाइट कागज़ बच जाएगा, कागज़ बचना नहीं चाहिए, कोशिश करना कि कागज़ ख़त्म हो जाए। और उसका सारा जो बाकियात जितनी भी है चिराग की, उनको आपने ज़मीन में दफन करना है, लेकिन ऐसी जगह पर दफन करना है जो जगह नापाक ना हो। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में ही आपको आपका महबूब आपकी तरफ दौड़ता हुआ नज़र आएगा, भागता हुआ नज़र आएगा, परेशान कुन सूरत हाल में नज़र आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।